ہم اپنے ارد گرد بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے کرسی، میز، گلاس، جگ میں دودھ۔ یہ سب چیزیں کچھ نہ کچھ جگہ لیتی ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ گلاس میں دودھ ڈالیں تو وہ گلاس کے اندر کی جگہ لے لیتا ہے، اور خالی گلاس کے مقابلے میں دودھ سے بھرا ہوا گلاس وزن میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی گلاس میں ڈالے جانے والا دودھ جگہ بھی لیتا ہے اور اس کا وزن بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو رکھنے کے لیے جگہ گھیرے اور اس کا وزن بھی ہو، اس کو مادہ یا میٹر کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا پروگرام مادہ یا میٹر کے بارے میں ہے۔ میٹر 3 شکلوں میں پایا جاتا ہے، یعنی سالڈ، لیکوڈ اور گیس میں۔ برف سالڈ یا ٹھوس چیز ہے۔ اگر اس کو پگھلایا جائے تو یہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یہ مائع یا لیکوڈ ہے۔ اسی طرح اگر اس پانی کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جائے تو یہ بھاپ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ گیس ہے۔ آئیے سب سے پہلے گیس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ گیس کی سب سے اچھی مثال ہوا ہے، جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہوا مختلف گیسوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ گیس کے مالیکیولز کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان موجود کشش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے گیس کے مالیکیولز ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادانہ سفر کر سکتے ہیں۔ اس حرکت کے دوران وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اپنی سمت تبدیل کر کے دوسری طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گیس کو اگر گرم کیا جائے تو اس کے مالیکیولز کے درمیان موجود فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ گیس کی نہ تو کوئی ڈیفینیٹ والیوم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیفینیٹ شیپ۔ گیس اس چیز کا والیوم اور شیپ لیتا ہے جس چیز میں اس کو رکھا جائے۔ آئیے یہ ایک تجربے کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ ان ٹیسٹ ٹیوبز اور اس کونیکل فلاسک میں 1 گرام ٹوبیکو لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر اس ٹوبیکو کو اسپرٹ لیمپ پہ رکھ کے گرم کیا جائے تو اس میں سے دھواں نکل کے اس ٹیسٹ ٹیوب میں بھر جاتا ہے۔ اب اگر اس کو ایک بڑی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے گرم کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ دھواں اس بڑی ٹیسٹ ٹیوب میں بھی بھر جاتا ہے۔ اب اگر یہی مقدار کونیکل فلاسک میں لے کے گرم کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گرم ہو کے دھواں پورے کونیکل فلاسک میں بھر جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر دفعہ ایک ہی مقدار کا ٹوبیکو لیا اور جب اس کو مختلف چیزوں میں ڈال کر گرم کیا تو گیس ساری جگہ میں پھیل گئی، چاہے وہ ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ٹیوب تھی یا ایک بڑا سا فلاسک۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گیس اس ساری جگہ میں پھیل جاتی ہے جو اس کو دی جائے اور اس چیز کی شیپ لیتی ہے جس میں اس کو ڈالا جائے۔ آئیے اب لیکوڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکوڈز کے مالیکیولز گیس کے مالیکیولز کے مقابلے میں قدرے قریب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان موجود کشش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکوڈ کے مالیکیولز لیکوڈ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن یہ لیکوڈ کے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر کسی مالیکیول میں اتنی انرجی ہو کہ وہ کیمیکل بانڈز کو توڑ سکے تو وہ لیکوڈ کی سطح سے ہوتا ہوا باہر نکل جاتا ہے اور ویپرز کی شکل لے لیتا ہے۔ لیکوڈز کا ایک ڈیفینیٹ والیوم ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی ڈیفینیٹ شیپ نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی شیپ لیتا ہے جس میں اس کو ڈالا جائے۔ آئیے یہ ایک تجربے کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ اس چھوٹے بیکر کے اندر 100 ملی لیٹر پانی لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اس چھوٹے بیکر کی شیپ لے لیتا ہے۔ اب اگر اس پانی کو ایک گریجویٹڈ سلنڈر میں ڈالا جائے تو آپ دیکھیے کہ اس کا والیوم وہی رہتا ہے، یعنی 100 ملی لیٹر رہتا ہے، لیکن اب یہ اس گریجویٹڈ سلنڈر کی شیپ لے لیتا ہے۔
अब अगर इसी पानी को एक बड़े बीकर में डाला जाए तो देखिए इसका वॉल्यूम वही यानी 100 मिलीलीटर रहता है, लेकिन अब ये इस बीकर की शेप ले लेता है। अब अगर इसी पानी को एक कॉनिकल फ्लास्क में डाला जाए तो आप देखिए इसका वॉल्यूम अब भी 100 मिलीलीटर है, लेकिन अब इसने इस कॉनिकल फ्लास्क की शेप ले ली है। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान मौजूद कशिश बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, यानी अपनी साकिन हालत के आगे पीछे हरकत करते हैं। सॉलिड्स की एक मखसूस शक्ल होती है, यानी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आइए ये एक तजर्बे की मदद से देखते हैं। ये एक कील है जिसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम और एक डेफिनेट शेप है जिसमें इसको ढाला गया है। अब अगर आप इसको एक छोटे बीकर में या फिर एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में, एक बड़े बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में किसी में भी डाल दें तो ये अपनी शेप और वॉल्यूम बरकरार रखता है। अजीज तलबा, आइए अब मॉलिक्यूल्स के बारे में गुफ्तगू करते हैं। मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं। ये बात एक साइंसदान रॉबर्ट ब्राउन ने एक तजर्बे की मदद से प्रूव की। इस हरकत के दौरान किसी भी लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स एक और लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस चीज को डिफ्यूजन का नाम दिया गया है। आइए ये एक तजर्बे की मदद से देखते हैं। इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर पानी लिया गया है। अब अगर इसके अंदर इंक डाली जाए तो आपने देखा कि इंक और पानी एक दूसरे में मिल गए और पानी काले रंग का हो गया, यानी इंक के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स में घुल मिल जाते हैं। ये इन दोनों के मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से होता है। जब पानी और इंक को मिलाया जाए तो इनके मॉलिक्यूल्स हरकत करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। आइए ये एक तजर्बे की मदद से देखते हैं। इस सिलेंडर के अंदर हवा ली गई है, जबकि इस सिलेंडर में धुआं लिया गया है। अब अगर आप इन दोनों के दरमियान मौजूद कार्ड को हटा दें तो आप देखेंगे कि धुआं एयर के साथ मिक्स हो जाता है। अजीज तलबा, आइए अब सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान मौजूद कशिश बहुत ज्यादा होती है। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स को दूर किया जाए तो उनके ऊपर एक कुव्वत या फोर्स लगानी पड़ती है। जिस तरीके से अगर एक लोहे की सिला को मोड़ना हो तो उसके ऊपर जोर जोर से ज़रबें लगाई जाती हैं। इसी तरह अगर एक रबर बैंड को लेकर उसके ऊपर कुव्वत लगाई जाए तो इसकी लंबाई तब्दील हो जाती है। अब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। इसी तरह अगर एक स्प्रिंग को एक तरफ से बांधकर दूसरी तरफ से खींचा जाए तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है या तब्दील हो जाती है। अब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। इस खसूसियत को इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी भी ठोस जिस्म की ये खसूसियत होती है कि वो हर उस कुव्वत की मुज़ाहिमत करता है जो इसके हुज्म, शक्ल या उसकी लंबाई में तब्दीली लाने की कोशिश करे। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी भी सॉलिड पर लगाई जाने वाली कुव्वत जो इसके वॉल्यूम, शेप या लेंथ को तब्दील करे उसको स्ट्रेस कहते हैं। वो कुव्वत जो कि एक यूनिट एरिया या इकाई रकबे पे लगाई जाए इसको स्ट्रेस कहते हैं।
स्ट्रेस को यूं भी लिखा जा सकता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या F/A। इसके यूनिट ये होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर कुवत एक ऐसी तार पे लगाई जाए जिसकी लंबाई कैपिटल L है और कुवत लगाने के बाद इसकी लंबाई स्मॉल l बढ़ जाती है, तो स्ट्रेन स्मॉल l ओवर L होता है, जहां पर कैपिटल L तार की लंबाई है और स्मॉल l तार की लंबाई में इजाफा है। किसी भी ठोस जिस्म में लाई जाने वाली तब्दीली इसके ऊपर लगाई जाने वाली कुवत के बराबर होती है। ये हुक्स लॉ है। इसको यूं भी बयान किया जा सकता है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू E, विच इज अ कांस्टेंट। जब भी किसी चीज के ऊपर इस तरीके से कुवत लगाई जाए कि उसकी लंबाई में तब्दीली आए, तो इस हालत में इस कांस्टेंट को यंग्स मॉडुलस का नाम दिया जाता है और इसको Y से जाहिर किया जाता है। हर चीज की शिनाख्त उसकी डेंसिटी से की जा सकती है, जो हर चीज के लिए मखसूस होती है। डेंसिटी की तारीफ कुछ यूं की जा सकती है कि इकाई हुज्म में कमियत की मिकदार को डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को यूं भी लिखा जा सकता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या M/V। इसके यूनिट ये होंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अजीज तलबा, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं। हरकत करते वक्त ये एक दूसरे से टकराते हैं और बीकर की वॉल से भी टकराते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स बीकर की वॉल से टकराते हैं तो ये उनके ऊपर एक कुवत या फोर्स लगाते हैं। एक इकाई रकबा के लिए ये फोर्स प्रेशर कहलाती है। प्रेशर को यूं लिखा जाता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या F/A। इसका यूनिट पास्कल होता है। सॉलिड्स के अंदर वजन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एक सॉलिड को एक मेज या फिर जमीन पे रखा जाए तो ये अपने वजन के मुताबिक इस मेज के ऊपर फोर्स लगाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये मेज भी इसके ऊपर इतनी ही कुवत लगाएगा जिसकी वजह से ये सॉलिड आपको साकिन नजर आता है। लिक्विड्स में प्रेशर लिक्विड की डेंसिटी और गहराई पर मुनहसर है। आइए ये समझने के लिए एक तजर्बा देखते हैं। अगर एक डब्बे में एक तरफ 3 मुख्तलिफ गहराइयों पर सुराख करें और इसमें पानी भरें, तो आप देखते हैं कि सबसे नीचे वाले सुराख में से निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूर जाता है, जबकि बाकी दोनों सुराखों में से पानी ज्यादा दूर नहीं जाता। इससे ये बात साबित होती है कि जितनी गहराई ज्यादा होगी इतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। लिक्विड्स के प्रेशर में डेंसिटी और गहराई के अलावा 2 और असूल अमल करते हैं, जो कि कुछ यूं हैं। जिस बर्तन में माया या लिक्विड रखा गया हो, इसकी दीवारों पर लिक्विड का दबाव अमूदन अमल करता है। माया के अंदर किसी गहराई पर वाक़या नुक्ते पर दबाव हर सिमत में यकसां होता है। ये पास्कल्स लॉ है। लिक्विड्स को जिस चीज में भी रखा जाए वो इसके वॉल्स के नॉर्मल प्रेशर लगाता है। अगर ये प्रेशर एक एंगल बनाता हुआ लग रहा होता तो हमें पानी हिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जिस्म उसी सिमत में हरकत करता है जिस सिमत में उस पर कुवत लगाई जाए, मगर हमें पानी हरकत करता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये है कि कुवत दीवारों के नॉर्मल लग रही है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक बीकर की दीवारें भी
इतनी ही कुव्वत पानी पर लगा रही हैं, जिसकी वजह से पानी साकिन है। लिक्विड्स हर सिम्ट में बराबर प्रेशर लगाते हैं। ये पास्कल्स लॉ है। आइए इसको एक तजर्बे की मदद से देखते हैं। ये एक सिरिंज है जिसके साथ टेनिस बॉल लगाई गई है और इसमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सुराख किए गए हैं। अब अगर इस बॉल में मौजूद पानी पर इस सिरिंज की मदद से कुव्वत लगाई जाए तो आप देखेंगे कि सारे सुराखों में से एक ही प्रेशर से पानी बाहर निकलता है। लिक्विड्स और सॉलिड्स की तरह गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स में ये प्रेशर उनके वजन की वजह से होता है, जबकि गैसेस में प्रेशर गैसेस के मॉलिक्यूल्स का सिलेंडर की दीवारों से टकराने की वजह से होता है। आप जानते हैं कि हवा गैसेस का एक मिक्सचर है, सो वो जमीन पर मौजूद हर चीज के ऊपर एक प्रेशर लगाती है। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100,000 पास्कल के बराबर होता है। किसी भी गैस के प्रेशर को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको मैनोमीटर कहा जाता है। अजीज तलबा, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि जब किसी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डुबोया जाए तो ये उछलकर ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर से इस पर कोई कुव्वत लग रही है जो इसको ऊपर की तरफ उछाल देती है। इसको बायोसी या अपथ्रस्ट कहते हैं। जो भी चीज पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डाली जाए उसके ऊपर अपथ्रस्ट उसके वॉल्यूम के बराबर अमल करती है। जब भी कोई जिस्म लिक्विड में डाला जाए तो इस पर एक बायोंट फोर्स अमल करती है जो कि इसके वजन के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है या असूले आर्शिमीदस है। अगर पानी में डाली जाने वाली चीज का वजन इस बायोंट फोर्स से ज्यादा हो तो वो पानी में डूब जाती है, और अगर इस चीज का वजन इस बायोंट फोर्स से कम हो तो वो पानी पर तैरने लगती है। इस बायोंट फोर्स की वजह से हम तैरते हैं और बड़े बड़े बहरी जहाज समंदर की सतह पर हरकत करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल न सिर्फ लिक्विड्स के लिए बल्कि गैसेस के लिए भी दुरुस्त है। इसकी वजह से हॉट एयर बैलून्स उड़ाए जाते हैं। अजीज तलबा, आइए आज के प्रोग्राम के अहम नुकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। किसी भी ठोस जिस्म की ये खसूसियत होती है कि वो हर उस कुव्वत की मुज़ाहिमत करता है जो इसके हुज्म, शक्ल या इसकी लंबाई में तब्दीली लाने की कोशिश करे। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। वो कुव्वत जो कि एक यूनिट एरिया या इकाई रकबे पे लगाई जाए इसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को यूं भी लिखा जा सकता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या F/A। इसके यूनिट ये होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी तार पर जिसकी लंबाई कैपिटल L है उसके ऊपर कुव्वत लगाई जाए और उसकी लंबाई स्मॉल l बढ़ जाए तो स्ट्रेन स्मॉल l ओवर कैपिटल L होता है, जहां पर कैपिटल L तार की लंबाई है और स्मॉल l तार की लंबाई में इजाफा है। किसी भी ठोस जिस्म में लाई जाने वाली तब्दीली इसके ऊपर लगाई जाने वाली कुव्वत के बराबर होती है। ये हुक्स लॉ है, या फिर इसको यूं लिखा जा सकता है कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू E कांस्टेंट। अगर किसी ऐसी चीज पर कुव्वत लगाई जाए जिसकी लंबाई तब्दील हो जाए तो ये कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस कहलाता है और ये Y से जाहिर किया जाता है। इकाई हुज्म में कमियत की मिकदार को
डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को यूं भी लिखा जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या m/v। इसके यूनिट ये होंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इकाई रकबे पर लगने वाली कुवत प्रेशर कहलाती है और प्रेशर को यूं लिखा जा सकता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या F/A। इसका यूनिट पास्कल है। लिक्विड्स के अंदर प्रेशर, डेंसिटी और लिक्विड की गहराई के अलावा दो असूलों पर मुश्तमिल होती है। वो ये हैं, जिस बर्तन में माया या लिक्विड रखा गया हो, इसकी दीवारों पर लिक्विड का दबाव अमूदन अमल करता है। माया या लिक्विड के अंदर किसी गहराई पर वाक़या नुक्ते पर दबाव हर सिमत में यकसा होता है। जब भी कोई जिस्म लिक्विड में डाला जाए तो इस पर एक बायोंट फोर्स अमल करती है जो कि इसके वजन के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल या अर्सूल आर्शिमीदस है। अजीज तलबा, हमारा आज का प्रोग्राम मादा या मैटर के बारे में था। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।